سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر دیا گیا تھا مرزوق کی پریس کانفرنس کے بعد اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی تھی۔ اس سٹیٹمنٹ میں ایسے مسکوٹ ہوا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، یا انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسری بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے، اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شیخ شاہین صاحب بھی موجود تھے، عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے، باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں۔ ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں۔ ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو، اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہیں جس کا پورے ملک اور اس کی الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی الیکشن کے سلسلے میں، پہلی بات میں نے آپ کو کہی خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں، مروت صاحب بھی آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح، اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد۔ دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوخ کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آدو کورم تھا یا نہیں تھا، پر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں۔ اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے۔ آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو، اور ہر صورت الیکشن ہو، اور الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اس فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر دے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوشچن تو میں صرف یہ 2 باتیں کی وضاحت چاہ رہا تھا، اگر کوئی کوشچن ہو تو میں وہ لے لوں۔ ایک سیکنڈ 1 بائی 1 ہم آلریڈی سب کے لیے کسی کو بغیر جواب نہیں ملتا۔ حیدر شیرازی
मेरा ये सवाल है कि खेल के हवाले से इससे कबल आप मशवरे के लिए टिकटों की तकसीम पर आपके पास गए, लेकिन इस बात पर आप ये कहते रहे कि हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अदालतें के फिर दीगर जगहों पे हमें पीछे धकेला जा रहा है। इससे कबल नवाज शरीफ एक अहल हुए थे, उस दौरान सीनेट के एक फतवा जो रहनुमा के उन्होंने जारी की थी उसको आज़ाद करके रियासत ने या रियासती इदारों को सब खेल खेला था। आपको नहीं लगता कि आप अभी तक पॉइंट से इजाजत हुई और बाद में खेल में आपने खिलाफ नहीं हेलो, देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो जी देखो, हमने कभी भी नहीं कहा कि अदलिया से क्रिकेट खेला जा रहा है। हमने हमेशा से कहा है कि अदलिया के इत्मीनान है, अदलिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मामला को देखो, ये एक पार्टी का ज़ाती हैसियत का नहीं है। देखो, एक आईनी कानूनी मसला है। मैंने कल भी आपको फैक्ट से फिक्र दिए थे कि 12 करोड़ अवाम में से, अगर 12 करोड़ वोटर में से अगर आप हमारी जो आप लोगों की दिए हुए सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 10 करोड़ अवाम को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे। 10 करोड़ जो हम समझते हैं उन वोटर्स में से हमारे 10 करोड़ वोटर्स होंगे, उनको वो कन्फ्यूज होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश होगी। तो हमने इसलिए कहा कि हम अदलिया पे एतमाद करते हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मैटर जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अदलिया पे हमने एतमाद की। जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो देखो, मियाँ साहब को उस वक्त एक और था, वो दस्तखत इशारा का साइन कर चुके थे और मियाँ साहब के खिलाफ एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिनको उनको डिसक्वालीफाई किया गया। जिस वक्त वो हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये वो किया था कि आप एक कैंडिडेट से इंडिपेंडेंट होंगे। वो एक डिसक्वालिफिकेशन का इशू था, सिंबल का इशू नहीं। तो हमारा इशू इंटायरली डिफरेंट है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिए कि चेयरमैन साहब ये बताएं कि आज निगरान हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी है 9 मई के वाक़यात की मज़ीद तहकीकात के लिए, आपके इल्म में होगा इस टाइमिंग पे आके ये सब कुछ करना, जब 7-8 महीने गुजर चुके और निगरान हुकूमत की जानिब से ये किया जाना, इसके ऊपर बताएं कि क्या समझ। देखो, हमने पहले दिन से ये कहा है, जो भी है उसके सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप खुद जज और जूरी नहीं बन सकते। और हम पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जा चुके हैं कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराओ, और जैसे आप जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं ताकि उसमें से जो कानून के तकाजे वो पूरे हो सके। तो हम बहुत पहले एक दरख्वास्त लेके जा चुके हैं। हुकूमत की कमेटी भी हमें कोई इत्मीनान नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हो अगर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और जुडिशल नहीं। देखो, पैकेज चूज वाली बात नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पर नहीं देखा कि उसमें क्या कोई सुबह था, लेकिन अदरवाइज जितनी भी नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वो ऑलमोस्ट एक डिटो कॉपी थी, उसी तरीके से सारे आर्डर लिखे गए थे। आपने देखा होगा इवन जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, जज साहब ने खुद भी बड़ी हैरत का इजहार कर दिया था कि 3 मुख्तलिफ हलके हैं और 3 मुख्तलिफ आरोज है जो इन हलकों के, लेकिन उनके जो रिजेक्शन के ऑर्डर थे वो ऑलमोस्ट डिटो सिंपल सेम थी। तो इसलिए ये एक है, लेकिन जितने तेज़ी से उन्होंने रिजेक्ट कर दी टेक्निकल बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह दिया ने उनको रिस्टोर किया और रिस्टोर भी हो गया साथ। नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल यह है कि उमैर रियासी के खिलाफ और इस अदालत का नोटिस जारी क्या उन अरकान के खिलाफ जारी होगा कि जिन्होंने इस करारदाद की मंजूरी में अपना हिस्सा लगाया और इलेक्शन के सवाल। देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक उमैर नियाज़ी साहब का ताल्लुक है, वो एक नोटिस है। नोटिस पे कंटेम्प्ट कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त एक पार्टी प्रोसीडिंग की। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये पैरामीटर्स थे और ये कंटेंट्स है उस एप्लीकेशन के, तो मुझे कभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस रिकॉल करेगी। इसलिए कंटेम्प्ट की वो नहीं प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आप कभी भी किसी लिटिगेंट को सज़ा नहीं दे रहे कि आप मेरे पास कैसे आए, भला उसका जो व्यू बनता हो ना हो। हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि आर ओ जुडिशरी से, और ये पहले से भी हमारी सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट की कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की। हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा।
देखिए, हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं, हम ये 2 असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोकना। देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इक़दाम है और रात के देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फ़ौरन देनी चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हमारी साथ सिरों में ज़्यादतियाँ हो रही हैं। देखिए, जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज आपने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगे। देखो, कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते। बाकी भी वो करेंगे, हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें। नहीं, देखो, जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा, चेयरमैन साहब बताइएगा कि कैंपेन के हवाले से सिवाय शेरअब्दुल नरवत के अलावा मशहूर आपके हम नहीं देखते कि दूसरी मीडिया का कोई भी बात जो है वो कोई जो है वो अदब से जरूर कन्वेंशन नहीं। देखो, जहाँ तक जिराची जरेबी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दी। दोबारा बताइए। देखो, हमने ड्यूटियाँ साइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जहाँ जलसे भी कुछ नहीं है, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों को किया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ जगहों पे गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट करती है, वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी की है उस वकील ने किया और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस हद में किया है वो बड़ा कमेंटेबल। ये बताइएगा कि करारदाद के बाद ये बात तो पता चल गई है कि मुल्क की 3 बड़ी पार्टीज जो है वो इलेक्शन इंतज़ाम के हक़ में बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखो, इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात। शेरअब्दुल नरवत साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा इबहम पैदा हुआ था, पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तनकीद भी कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काफी लोगों के होते हुए ये इबहम पैदा हुआ। और क्या मैं आपको ये बताऊं, शेरअब्दुल नरवत साहब वज़ाहत दें, बेहतर होता वो आपके साथ बैठ के वज़ाहत दे देते, जरा टीवी की स्क्रीन पे जवाब उन्होंने स्टेटमेंट दिए, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदमी दिमाग है। बहस ना करें।
जवाब सुने, सवाल करें और जवाब दें। चेयरमैन साहब, मेरे बेटे का मकसद ये है, कोई इमाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर, जरा सुन ले, पीटीआई के वर्कर ये चीज से नशीन करके कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन सर शेख शाहीन की जगह पे वेलकम किया, बताया खान साहब से रिलेटेड मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर दिया, दैट्स इम्प्लीमेंटेड। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको एक ही क्वेश्चन वो यही हमें पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है न कोई हम पार्टी में न खासा स्टेशन में। सर नहीं, एक मिनट देखो, मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे। पंचोता साहब भी आके बैठे, और हमारे पते गए थे 10 मिनट ये हमारे पास। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा, आपने ये आप ये बताइएगा कि लेवल पे बीच का जो आपके तामुदात थे उसके साथ तक उसमें सिक्योरिटी का चार्ज में देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है, और इसमें हमने जो कल मंडे वाले दिन केस लगा हुआ उसमें आज हमने CMA भी फाइल की है। इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया सुप्रीम